ایک تو یہ ہے کہ ہمارا ایمان ایک اللہ کے اوپر ہے 99 خوبیوں کے ساتھ. 99 خوبیاں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آئی ہیں، قرآن میں ایک ساتھ نہیں آئی ہیں. کہیں 2 آئی ہیں، کہیں 4 آئی ہیں، کہیں 6 آئی ہیں، کہیں 10 آئی ہیں، 99 ہو جائیں گی. حدیث میں ایک ساتھ آئی ہیں. ہم اللہ اسے کہتے ہیں جس میں 99 خوبیاں ایک میں سما جائیں، اسے ہم اللہ کہتے ہیں. اور 99 خوبیوں کو الگ الگ کر دو، اس کو شرک کہتے ہیں. مثال کے طور پہ خدا نے پیدا تو کیا ہے لیکن پانی کوئی اور برساتا ہے. گیان کی دیوی کی اور ہے، سرسوتی دیوی، تو یہ شرک ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی گیان دیتا ہے، وہی سب حساب کتاب لے گا. سب کچھ ایک میں سما جائے اس کو ہم اللہ کہتے ہیں. یہی توحید اور شرک کا فرق ہے. اور ایک ہی گناہ ایسا ہے جو اللہ کے معافی ہوگا، اس کا نام ہے عند الشرک ظلم عظیم. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا. اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شامل کرنا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ ذات میں شامل کرنا ہے، یعنی آپ نے اللہ کی ذات میں پرسنالٹی میں شامل کیا. اور ہم مانتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے علاوہ بھی کوئی روزی روٹی دے سکتا ہے، تو یہ اس کی صفات میں شامل کرنا ہے، کوالٹی میں شامل کرنا ہے. روزی روٹی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دینا چاہے تو کون جو ہے روزی روٹی حاصل کر سکتا ہے؟ 20 کروڑ بے روزگار گھوم رہے انڈیا میں، کہاں ملے روزی روٹی؟ اللہ نہ دینا چاہے تو نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ ہی سب کو دیتا ہے. دوسری ایمان کی بنیاد ہماری رسالت. آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ آخری نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت قرآن میں 25 نبیوں کا نام آیا ہے، لیکن تعداد حدیث میں 1.25 لاکھ بتائی گئی ہے. ہمارا ایمان سبھی کے اوپر ہے. 1.25 لاکھ نبی رسول پیغمبروں پہ ایمان ہے، لیکن تعلیمات میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی عمل کرتے ہیں. اس کی وجہ کوئی پوچھے تو ہم آپ بتا سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم ایمان تو رکھتے ہیں، لیکن بائبل صحیح شکل میں موجود نہیں ہے. میں عیسائیوں کے اسکول میں پڑھا ہوں، وہاں بھی ایک بائبل تھی. 84 قسم کی بائبل ہے، کس کو صحیح مانیں گے آپ؟ قرآن تو ایک ہی قسم کا ہے. تو اس لیے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن ہم بائبل کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے. کچھ باتیں اچھی ہیں اس میں، کچھ باتیں وہ ہیں جو بدل دی ہیں انہوں نے. ایسے ہی ہم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں، لیکن توریت پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ توریت کو لوگوں نے بدل دیا ہے، چینج کر دیا ہے. صحیح شکل میں قرآن موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں. 2 بنیادیں ہو گئی، ایک اللہ کو ماننا یعنی توحید، اور دوسرا رسالت یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کو ماننا. لیکن تعلیمات پہ کس کی عمل ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیوں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحیح شکل میں موجود ہیں، باقی سب کی تعلیمات بدل گئی. تیسری بنیاد ایمان کی کیا ہے؟ تیسری بنیاد ایمان کی ہے کہ اللہ نے بھی کہا، ایک اللہ نے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی کہا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. یہ فرمایا کہ مرنے کے بعد ہمیں جواب دینا ہے. یہ اصل بنیاد ہے، مرنے کے بعد جواب دینا ہے. یہ دنیا کی زندگی جو ہے عارضی ہے، ٹمپریری ہے. فصل کاٹنے کی جگہ نہیں ہے، کھیتی کرنے کی جگہ ہے. یہاں کے رزلٹ الٹے الٹے نکلتے ہیں. ان نتیجوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ جو جتنا بڑا بے ایمان و بھرشٹ ہے وہ اتنا ہی مزے میں ہے. اس کا مطلب کہ خدا اس سے خوش ہے؟ بالکل خوش نہیں. ایک آدمی بہت ایماندار ہے، بہت تقوی ہے، پرہیزگار ہے، جھوٹ نہیں بولتا، رشوت نہیں دیتا، ڈنڈی نہیں مارتا، وہ بیچارہ پریشان ہے. تو کیا اللہ اس سے ناراض ہے؟ تو دنیا کے نتیجوں سے کوئی صحیح نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا. اصل نتیجہ آخرت میں نکلے گا کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب لے گا. اب یہ ہمارا ایمان مکمل ہو گیا. توحید، رسالت، آخرت. ایک اللہ پہ ایمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانتے ہوئے رسولوں پر ایمان، اور مرنے کے بعد کی زندگی ہی آخرت پر ایمان. یہ 3 چیزیں ہماری بنیاد ہیں، جس کی بنیاد پہ پوری دنیا کا 200 کروڑ مسلمان اور ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان یا 30 کروڑ مسلمان 140 کروڑ میں سے وہ سب کے سب جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں، بھائی بہن بن جاتے ہیں. اب میں کچھ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو عام طور پہ لوگ نہیں رکھتے اور عام طور پہ مسنگ ہے. مدرسوں میں کچھ لوگ تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہوں گے، پوری تعلیم آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو جو اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں، ہم آپ جیسے گورنمنٹ میں جا رہے ہیں، تو ان کو تو موقع نہیں ملتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں ڈاٹا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے 3% بچے مدرسے میں جاتے ہیں. کیونکہ میں ایجوکیشن کا بھی آدمی ہوں، پروفیسر بھی رہا ہوں، تو میں آپ کو ڈاٹا ہی بتا سکتا ہوں. ہندوستان کے مسلمانوں کے بچوں میں سے، بچیوں میں سے 3% مدرسوں میں جاتے ہیں. 97% کہاں جاتے ہیں؟ 97% 97% اسکولوں میں جاتے ہیں، جہاں پر دینی تعلیم عام طور پہ نہیں ہوتی.
जिनको दीन सीखने का मौका नहीं मिलता, हम लोगों ने अलग से सीख लिया, कुरान पढ़ लिया, हदीस पढ़ लिया, दीनी जमातों में शामिल हो गए। जमात से मतलब आप ये न समझिए मैं किसी खास जमात का नाम ले रहा हूँ, मतलब दीनी महफिलों में शामिल होने लगे तो सीख लिया। सबको ये मौका नहीं मिलता, जबकि हमारे दीन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? पहली वही जो नाजिल हुई अल्लाह ताला की तरफ से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, 23 साल में पूरा कुरान नाजिल हुआ। शब कदर की रात में जो पहली वही नाजिल हुई थी, 5 आयतें, वो थी इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, 5 आयतें सूरह अलक़ की। इन 5 आयतों की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उस पहली आयत का पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है इक़रा। इक़रा का अरबी में वर्ड होता है पढ़ो, रीड, READ, पढ़ो। ऑर्डर है, ऑर्डर समझते हैं सब लोग, हिंदी इंग्लिश में आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है ये काम करो, ऑर्डर दिया जा रहा है। सिट डाउन, बैठ जाओ, स्टैंड अप यानी खड़े जाओ, गेट आउट यानी बाहर निकल जाओ, इसको ऑर्डर कहते हैं। अंग्रेजी में इसको इम्पेरेटिव भी कहते हैं। ऑर्डर दिया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है कि पढ़ो। अब पढ़ने में क्या चीज़ पढ़ो ये आदमी सोच सकता है, तो खास तौर से ख़वातीन बैठे हैं, आपका इम्पोर्टेंस बता के मैं बात को खत्म करूँगा। आप पहले भी आएंगे, तादाद भी आपकी ज़्यादा है, ज़्यादा जोश ख़वातीन में पाया जाता है। मैं खुद ही देखता हूँ कि भारत के माने हमारी वाइफ पीछे आगे ही रहती है और मर्दों को तो बाहर की बात बहुत करनी पड़ती है। एक ख़वातीन हमारी उसका हक़ अदा कर देती हैं और उनका इम्पोर्टेंस इस्लाम में क्या है? बात में इक़रा का मतलब होता है पढ़ो। पढ़ने में ये कहाँ लिखा हुआ है खाली हिंदी पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो? ये कहाँ लिखा कुरान में? ये हमने अपने समझ रखा है, हमने समझ रखा है फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, सब कुछ पढ़ो, सिवाय एक चीज़ ना पढ़ो। ये मैं अपने से कह रहा हूँ। और आप देखें अमलन यही हो, गाजीपुर से लेके पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यानी दीन के अलावा सब कुछ पढ़ो। दीन तो सुनने की चीज़ है, मौला साहब ने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, सुन सुना के सुननी को सुन लिया। तो कोर्स के मामले में तो हम लोग ऐसा नहीं करते। कोई बच्चा हाई स्कूल का एग्ज़ाम दे रहा है और मैं आपसे कहूँ कि बच्चे से कहो कि NCERT की किताबें पढ़ना बंद करें, आप उसकी बात नहीं मानोगे। आप कहोगे नहीं नहीं नहीं। अगर कोई है जो मैं कह रहा हूँ, बच्चे से कहो कि वो एग्ज़ाम में लिख दे NCERT की किताबें ना पढ़ा करें, SCERT की किताबें ना पढ़ा करें, आप नहीं मानेंगे। इस दुनिया के मामले में हम बड़े हाई अलर्ट हैं, मर्द भी हो ख़वातीन भी। हम किताब लेके आते हैं, हम सुनी सुनी बातों पर अमल नहीं करते। हम सिलेबस को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। क्यों? एग्जाम में पूछा जाएगा ना, जो दीन है वो पढ़ने की चीज़ नहीं है, वो तो खाली सुनने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ नहीं है। बिना पढ़े हम जाएंगे अल्लाह ताला के यहाँ फेल हो जाएंगे, गारंटी है इस बात। और फेल हो जाएंगे जहन्नम में चले जाएंगे। हमें सिलेबस पता ही नहीं है, सिलेबस पता ही नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ख़वातीन समेत, मैं बहुत माज़रत के साथ ये बात कह रहा हूँ, यहाँ पर पर्दे के लोग बैठे हुए, बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने पूरा हिंदुस्तान देखा है। आप 850 ज़िले में 750 ज़िले देखे, शायद ही कोई ऐसा रहा हो। गाजीपुर शहर में आया था और गाजीपुर शहर की आदत में देखे हैं। 14 कंट्रीज़ मैंने देखे, ईरान समेत, दुबई वगैरह 14। तो काफ़ी दुनिया देख ली है और हज़ारों किताबें पढ़ी हैं और अब भी पढ़ें। इससे दुनिया की किताबें पढ़ना था, पढ़ लिया, BSc MSc PhD इंजीनियरिंग सब कर लिया, वो गुजर गया ज़माना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वाले सब पढ़ लिया। अब दीनी किताबें पढ़ते हैं। तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का मतलब है पढ़ो, तो उसमें हिंदी इंग्लिश के साथ दीन भी शामिल है। अल्लाह ताला आपसे हो सकता है हिंदी के बारे में ना पूछे, फिजिक्स के बारे में शायद कम पूछे, लेकिन कुरान और हदीस के बारे में ज़रूर पूछे। कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं हर एक को एक होमवर्क देता हूँ। होमवर्क जानते हैं, मास्टर साहब बैठे हुए स्कूल चलाते हैं, होमवर्क सब जानते हैं। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ और हर जगह देता हूँ ये होमवर्क। होमवर्क ये है, हर शख्स के कम से कम इंडिया में एवरेज 10,000 रिश्तेदार होते, मेरे भी आपके भी होंगे 10,000 रिश्तेदार। 10,000 रिश्तेदारों में से आप मुझे 10 के नाम बताइएगा, अभी नहीं, होमवर्क है, 10 के नाम सोच के बताइएगा। इकबाल अंसारी को बता दीजिएगा। मर्द में ख़वातीन में से क्या 10 लोग 10,000 में से ऐसे हैं जिन्होंने कुरान तर्जुमा तफसीर से पढ़ा हो? मैं रिज़ल्ट अभी बता रहा हूँ, आप बाद में बताएंगे, मैं रिज़ल्ट अभी बता रहा हूँ, तकरीबन 0। आप 10 नहीं ढूंढ पाएंगे। हम 1% भी शायद कोई बिल्ला माशाअल्लाह, जितने लोग बैठे हैं किसी ने कुरान नहीं पढ़ा। अब बताइए एग्ज़ाम में कैसे पास होंगे आप? अल्लाह ताला की NCERT का सिलेबस आपने पढ़ा नहीं है और एग्ज़ाम में देने को तैयार है। अभी घर से बाहर निकले, हार्ट अटैक हो गया, मर गए, तो दफ्तर अमल तो ख़त्म हो गया ना। अब अल्लाह ताला हिसाब किताब लेगा, हम कहेंगे अल्लाह ताला हमें तो निसाब पता ही नहीं, निसाब पहले सिलेबस को, सिलेबस क्या था हमें तो पता ही नहीं था। तो क्या इस बुनियाद पर अल्लाह ताला के बच जाएंगे? नहीं बचेंगे।
अल्लाह ताला पूछेगा जब हिंदी इंग्लिश मैथ का सिलेबस मालूम कर सकते थे तो दीन का सिलेबस क्यों नहीं मालूम किया? कुरान तो मौजूद था। कुरान हम लोग खाली तिलावत करते हैं, तिलावत नाम समझते हैं, अरबी आती नहीं, क्या समझेंगे? हम हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस उस ज़ुबान में समझते हैं जो ज़ुबान हम जानते हैं। तो दीन को हम खाली क्यों अरबी में पढ़ रहे हैं? उसको भी हिंदी इंग्लिश उर्दू समझें। तो जो ज़ुबान हम जानते हैं उसमें हम समझें। अब मैं इसका निचोड़ बता के बच्ची थोड़ा सा बच्चों का मुझे, अब मैं इसमें से पूरे कुरान में से, कुरान बहुत बड़ा है, अब ये आपका असली होमवर्क है, तो मैंने छोटा होमवर्क दे दिया कि आप ख़ानदान का सर्वे करें। क्या ख़ानदान में 10 मर्द औरतें ऐसी हैं जिन्होंने कुरान तर्जुमे से पढ़ा? रिज़ल्ट मैंने सर्वे का पहले बता दिया कि रिज़ल्ट है 0, एक भी आप नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर मिल जाए तो मुझे आप फ़ोन करके ज़रूर बताएं, मैं उसको मुबारकबाद दूँगा। वो आगे अगर कुछ होता हो सकता है इनाम भी दूँ उसको, आगे अगली बार जब आऊँगा इनाम भी दे सकता हूँ। तो चलो कोई तो मिला इसमें पढ़ा। हाँ, अब मैं इसमें से बता रहा हूँ कि पूरा कुरान आप पढ़ते रहिए, ये असली होमवर्क है। अब आप घर में थोड़ा सा टाइम निकालिए, बच्चे भी निकालें, ख़वातीन भी निकालें, कि कुरान को तर्जुमे तफसीर से पढ़ना शुरू करिए, हदीस और सीरत को पढ़ना शुरू करिए, उस भाषा में पढ़िए जो भाषा आपको आती है, उर्दू है, इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें पढ़िए। तिलावत तो करिए अरबी में, आप उस ज़ुबान में पढ़िए। पूरे कुरान में कितने पारे हैं सब जानते हैं, 30 पारे हैं। कितने रुकू हैं सब जानते हैं, 576 रुकू हैं। कितनी आयतें हैं? मोर देन 6000 आयतें मौजूद हैं, लाखों अल्फाज मौजूद हैं, 114 सूरतें मौजूद हैं। ये पूरा दीन है, पूरे के पूरे दीन पे अमल करना है। अल्लाह ताला पूछेगा, कुरान की एक आयत हमसे कहती है उस में काफ़ा, दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, आधा अधूरा नहीं। आधा पढ़ोगे तो एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। 12 चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर और 6 पढ़े तो फेल होने की गारंटी है। कहाँ से पास हो गए भाई? कहाँ से फर्स्ट डिवीज़न आई? तो पूरा कुरान पढ़ के पूरे कुरान पे अमल करना है। अब इसमें मोटी मोटा क्या अमल करना है वो बता के बात करता हूँ। ये बड़ा होमवर्क है आपका, क्या पूरा कुरान पढ़ें, पूरी ज़िंदगी पढ़ें, तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ें। एक छोटी सी सूरह मैं आपको सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ, जो पूरे कुरान का निचोड़ है, इसलिए सूरह आपको सुना रहा हूँ, वरना कोई और सूरह सुना सकता है। ये भी आपको आज पता चलेगा कि मैं वो सूरह आपको सुना रहा हूँ जो पूरे कुरान का निचोड़ है, समरी। आप देखिए कितनी है ना कुरान में, कैसी कैसी हैरतअंगेज़ चीज़ें, हैरतअंगेज़ ताज्जुब वाली चीज़ें, कितनी कीमती चीज़ें मौजूद हैं। एक सूरह ऐसी है जो पूरे कुरान का निचोड़ है, बाकी सब कुरान पूरा उसकी तफसीर है, हदीस पूरी उसकी तफसीर है, व्याख्या, सीरत उसकी पूरी तफसीर है, दीनी किताबें उसकी तफसीर है। 4 पॉइंट के अंदर वो सूरह बता देती है कि दीन क्या है। 4 पॉइंट है हदीस के अंदर, सबको याद नहीं आएंगे, अभी याद करा दूँगा। अब 4 की व्याख्या आप पढ़िए, ये भी आपका होमवर्क हो गया। 4 पॉइंट आपको बता दिए हमने, जैसे निबंध लिखते हैं तो मोटी रूप देखा है और आउटलाइन बनाते हैं, ये दीन की आउटलाइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन्हीं 4 चीज़ों को ढूंढना है आपको कुरान के अंदर ही। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो सूरह है जो इमाम साहब नमाज में पढ़ते हैं। जितनी ख़वातीन बैठी हैं सबको याद होगी, जितने लोग बैठे हैं सबको याद होगी, जो बच्चे बैठे हैं इनको भी याद होगी। इसलिए वो छोटी सूरह है, 30वें पारे की सूरह है, बड़ी सूरह सबको याद नहीं रहती हैं। तो वो सूरह है कि औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ज़माने की कसम, यानी ज़माना गवाह है। किस चीज़ पर गवाही दे रहा है? ज़माना गवाह है कि सारे के सारे लोग खसारे में, घाटे में। इसको गौर से सुन लीजिए आप। अब उर्दू में बातें आ रही हैं तो ज़मीन खिसक जाएगी पैर के नीचे से। जितने बैठे पूरे हिंदुस्तान के 140 करोड़, पूरे दुनिया के 800 करोड़, दुनिया कह रही है कि सब के सब घाटे में। आप यहाँ कहाँ घाटे भाई? कोई IAS बन गया, कोई PCS बन गया, कोई मौलाना बन गया, किसी की दुकान बढ़िया चल रही है, कारोबार, कोई बढ़िया स्कूल चला रहा है, कहाँ घाटे में? कुरान कह रहा है सब घाटे में। अब ये बात किसकी बात सही है? कुरान की बात सही है। कुरान कह रहा है कि ज़माना गवाह है, ज़माने की कसम के सारे इंसान खसारे में है। ज़माने की यानी ज़माना गवाह है, सब के सब घाटे में है, सिवाय इसके। एक्सेप्शन होते हैं, हर चीज़ के अपवाद होते हैं, इस्तिस्ना होती है कुछ लोगों को छोड़ के। इल्ला कहते हैं एक्सेप्शन, सिवाय उनके। 4 लोग हैं जो घाटे से बचे हुए हैं। तो ये 4 चीज़ें हम पॉइंट आपको बता रहे हैं, कुरान उसकी तफसीर वो आपको क्या है। 4 चीज़ें, इल्ला लज़ीना आमनु, पहली शर्त है जो ईमान लाए। ईमान क्या है? मैंने आपको शुरू में बता दिया, तौहीद रिसालत आखिरत, अल्लाह के 99 खूबियों के साथ। इल्ला लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए। ईमान के बगैर कोई जन्नत में नहीं जाएगा। खाली ईमान ले आए तो क्या काम चल जाएगा? नमाज नहीं पढ़ी, दीन पे अमल नहीं किया तो क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट यही कुरान बता रहा है, आपने से कोई बात नहीं कर रहा हूँ।
सब कुरान का बता रहा हूँ आपको। इल्ला लजीना आमनू व अमलुस सालिहात, और नेक अमाल किए। अब नेक अमाल में पूरा कुरान भरा हुआ है, क्या क्या करना है भाई। नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, ज़कात देनी है, और हज भी करना है, झूठ नहीं बोलना है, ग़ीबत नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, डंडी नहीं मारनी है। मतलब पूरा कुरान हदीस भरा हुआ है कि इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, नेक अमाल क्या है, ढूंढना पड़ेगा ना उसमें नेक अमाल क्या क्या है। मालूम है हमें नहीं है, अगर पता चला बारात दे के चले गए, इस्लाम में बारात ही नहीं है। ये जहेज ले लिया बेटी वाला, बेचारा कर्जदार हो गया 20 लाख रुपए का, उसमें इस्लाम में जहेज तो है ही नहीं। तो नेक अमाल किए, इल्ला लज़ीना आमनू, खाली ईमान नहीं लाए, नेक अमाल किए, अमिलुस सालिहात, 2 काम हो गए। तो क्या इतना कर लिया कामयाब हो गए? कुरान कहता है कि अब भी घाटे में हैं। ईमान ले आए तब भी घाटे में हैं, और नेक अमाल कर लिए, खुदा ना खास्ता लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लो कर लिया तब भी घाटे में आप। क्यों? अभी 2 ही चीज़ें हुई ना, अभी 4 काम हुई, 2 चीज़ें और भी हैं, वो भी आप सुन लिए तो 3 पूरा हो जाएगा। अगला आयत का टुकड़ा कहता है कि इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़, हक़ की नसीहत करते हैं। जो दीन आपने सीखा वो दूसरों को बताते हैं, मुसलमान को बताते हैं, हिंदू को बताते हैं, साथियों को बताते हैं, मर्द मर्दों को बताते हैं, औरतें औरतों को बताती हैं, लड़कियां लड़कियों को बताती हैं, लड़के लड़कों को बताते हैं, बच्चे बच्चों को बताते हैं कि स्कूल में पेंसिल नहीं चुरानी चाहिए, किसी का कटर नहीं चुराना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। जो बात पता है, मुसलमान स्वार्थी नहीं हो सकता, मुसलमान सेल्फिश नहीं होता, उसे दूसरों को खुद जन्नत में जाना है, दूसरे को भी ले जाना है। तो क्या करेगा वो? वतवासौ बिल हक़, हक़ की नसीहत करते हैं, हक़ की दावत देते हैं। जो हमने सीखा है उसको दूसरों को बताते हैं। लर्न एंड टीच, लर्न एंड टीच, यही इस्लाम है। और क्या इस्लाम? सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, पूरी ज़िंदगी ही करना है। अब चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ ये है कि इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तरकीब करनी है। जब आप नेकी का काम करेंगे, जब आप नेकी पे अमल करेंगे, जब आप दूसरों को नेकी की बात बताएंगे, तो होगा क्या? वो आपको भी बता दे रहा हूँ, आज ही बता दे रहा हूँ क्या होगा। तो कुरान बता रहा क्या होगा, सहाबा कराम के साथ क्या होगा। मक्का छोड़ना पड़ गया, मदीना गए कि नहीं गए, पत्थर बरसाए गए। आप समझ रहे हैं कि आप नेकी फैलाएंगे तो लोग ऐसी बर्दाश्त कर लेंगे, आपके अम्मा अब्बा और रिश्तेदार और ख़ानदान और पड़ोस और समाज और हुकूमत, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छे लोगों को हमेशा जो है वो परेशान किया गया। हज़रत ईसा को सूदी में चढ़ाने की कोशिश, सुकरात को जहर का प्याला पिला दिया गया। तो नेक काम इतना आसान तो नहीं है। तो क्या करेंगे? थकार के बैठ जाएंगे। वतवासौ बिस सब्र, उस पर सब्र करेंगे, हम डटे रहेंगे। सब्र का मतलब नहीं छोड़ देंगे, सब्र का मतलब डटे रहेंगे और एक दूसरे को हौसला दिलाएं। कोई बात नहीं, घबराओ, कोई बात नहीं, रात के बाद सवेरा है, कोई बात नहीं, सुकून आएगा, और बात के बाद परेशानी दूर होगी, बेईमानी नहीं करनी। एक दूसरे को सब्र की तरकीब, एक दूसरे को हौसला दिलाना। तो ये 4 काम हैं। इन्हीं की तफसीर कुरान है, इन्हीं की तफसीर हदीस है, इन्हीं की तफसीर सीरत है। इन्हीं चीज़ों को दीनी किताबों में ढूंढना है। ये 4 मेन पॉइंट है, इसको डायरी में नोट कर लिए, दिमाग में याद कर लिए। छोटी सूरह है, ये भूल जाएगी तो सूरह दोहरा लीजिए। सहाबा कराम जब एक दूसरे से मिलते थे तो ये सूरह हदीस में आता है, एक दूसरे को सुनाते थे, रिमाइंड कराते थे। उसको क्यों सुनाते थे? रिमाइंड कराते थे। लंच महफिल है, यहाँ से उठे तो या तो दुआ पे महफिल ख़त्म होती थी, या एक दूसरे को यही सूरह सुनाते थे, हदीस में आता है। क्यों? ये पूरे कुरान की समरी है, सारांश है, पूरा दीन इसके अंदर आ गया है। मैं यही 4 बातें फिर से दोहरा देता हूँ कि ज़माने की कसम सारे के सारे लोग घाटे में, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमाल किए और जिन्होंने दूसरों को नेकी की तलक़ीन की बताया और उस पर सब्र किया, एक दूसरे को सब्र की तलक़ीन की। ये 4 काम कर लिए। अब यहाँ ख़वातीन ज़्यादा बैठी हैं, आपकी अहमियत के ताल्लुक से एक बात कह के मैं बात को ख़त्म करूँगा कि ये मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा मैं कोई बात अपने से तो कह ही नहीं रहा हूँ। तो जो कुरान हदीस में पढ़ते हैं वही कहते हैं, अपने से कहने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कुरान हदीस में लिखा वही बतानी चाहिए। लोग कहते हैं इस्लाम में औरतों को जो है पर्दे में कर दिया और कैद बंद कर दिया, इल्ज़ाम लगाते हैं, नकाब में एकदम बंद कर दिया, बड़ा जुल्म होता है मुसलमानों की औरतों के अंदर ही। उनके यहाँ क्या होता है वो आप देखिए, सबको बताए क्या हो रहा है। अखबार उठा के पढ़ ली क्या हो रहा है, एपेस्टीन फाइल ने और बोल खोल दी कि तुम्हारे यहाँ औरतों के साथ क्या हो रहा है, सब जानते हैं। हमारे यहाँ तो उनको सेव किया गया है। तो ख़वातीन की अहमियत इस्लाम बताता है। ये कहा जाता है, आपके एजुकेशन के आगे बैठे हुए हैं प्रिंसिपल साहब, कि एक लड़के को पढ़ा दिया तो खाली एक लड़का पढ़ेगा, और एक लड़की को पढ़ा दिया तो एक नस्ल को आपने पढ़ा दिया। तो किसकी अहमियत ज़्यादा है? लड़की की ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन खिदमत का ज़्यादा मुस्तहिक़ है, बाप या माँ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा माँ, उसके बाद कहा माँ, उसके बाद कहा माँ, उसके बाद कहा बाप। तो मुझ जैसा मैथमेटिक्स का आदमी से परसेंटेज निकालता है। मैं कहता भी हूँ ख़वातीन से, बच्चियों से, बेटियों से अपनी, यही कहता हूँ कि 75% हुकूक तो औरतों को दे दिए। कहाँ कम दिया भाई? इस हदीस से पता चल रहा है 75% हुकूक तो औरतों को दे दिए।
और 25% मर्दों के हिस्से में आई, तो कहाँ कम दिया भाई, ज़्यादा दिया। जन्नत किसके कदमों के तले बताया, बाप के या माँ के कदमों के तले बताया। बेटी की परवरिश पे जन्नत का वादा नहीं है। मैं सैकड़ों हदीसें आपको पेश कर दूंगा। हमने कहा नहीं हमारी वाइफ हम बिना पढ़े नहीं सोते, इकबाल जानता अच्छी तरह से। हम 12 से 1 रात में हम हमारी वाइफ पढ़ती हैं, इलाहाबाद की वाइफ भी सादिया जमीन, बिना पढ़े नहीं सोते। ढेरों वाक़या बता दूंगा आपको। तो ख़वातीन चूँकि बैठी हुई हैं इसलिए इनकी हौसला अफजाई करूँ। आपकी अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि मर्द हो चाहे औरत, लड़का हो चाहे लड़की, सब आप ही की गोद में परवरिश होकर बड़े होते हैं। समाज आप बनाते हैं, मुल्क का निर्माण आप करते हैं, इंसानियत की तामीर आप करते हैं। ये सारे बहुत अच्छी बात है। किसी मुल्क को तबाह करना है तो एटम बम की ज़रूरत नहीं है, गलत बात है। एटम बम से तो 2.5 लाख लोग मरे थे हिरोशिमा में, और 3 लाख मरे थे नागासाकी में, और तब भी जापान जिंदा है। औरतों को आप खाली बदकिरदार बना दीजिए, उनको मकसद से हटा दीजिए, ये दुनिया तबाह हो जाएगी। औरत का किरदार से हटना एटम बम है, एक साहब ने कहा, बस इतनी काफ़ी, पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा। रशिया के 16 टुकड़े हुए औरतों की वजह से, अमेरिका तबाह होगा इंशाल्लाह औरतों की वजह से, बर्बाद होगा। ये इतनी अहमियत ज़्यादा है। लड़के की परवरिश से जन्नत का वादा नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस शख्स ने 3 अपनी बेटियों की, चाहे किसी और की बेटियों की, या 2 की या 1 की परवरिश की, और अच्छी तालीम तरबियत की, और उनको निकाह की स्टेज तक पहुंचा दिया, वो हमारे साथ जन्नत में एकदम करीब होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए आप, इस तरह से उंगली का इशारा है कि इतना करीब हमारे साथ होगा। तो लड़कियों की और औरतों की, बच्चियों की परवरिश पे इतना ज़्यादा जन्नत का वादा है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, लड़कियों की, औरतों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो बहरहाल आप लोग अपनी अहमियत समझें और इंशाल्लाह नई जनरेशन की तामीर करें। और दीन को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल औरतों का है, क्योंकि चाहे वो गैर मुस्लिम भी अगर हों औरतें, आप देखिए उनके यहाँ भी और हमारे यहाँ भी जितनी भी जायज़ी रस्में ज़िंदा हैं औरतों की वजह से। और जो अच्छा काम हो रहा है वो भी औरतों की वजह से, सारे काम अच्छे भी हो रहे हैं औरतों की वजह से। तो औरतों को अगर आपने सही कर दिया तो समाज सही हो गया। अभी अपने गांव में गया था, पता चला कि साहब वो कुछ औरतें ज़मीन पे लेट के जा रही थी। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, अल्लाह ताला ने पैर दिए, चल के जाइए, लेट के जा रही। पता चला बहू आई है अभी नहीं, और साहब वो कुएँ की पूजा करने के लिए जा रही है साहब, और लेट के जाना होता है। अभी क्या है, ये सब रस्मों को औरतें ज़िंदा रखेंगी, इसका क्या ताल्लुक है धर्म से या मज़हब से या दीन से, क्या ताल्लुक है? ये ताल्लुक सीधा दीन कुरान के अंदर मौजूद है, हदीस के अंदर मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मौजूद है, दीनी किताबों में मौजूद है। तो मसलक से ऊपर होकर हमें डायरेक्ट कुरान से यह तालीम हासिल करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें सही दीन को समझने, उस पर अमल करने, उसी को फैलाने की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इशा में 20 मैंने थोड़े से वक्त में मतलब की बात कहने की कोशिश की, इसका ज़िंदगी से बड़ा रास्त ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला के हिसाब किताब इसी का होना है। तो सवाल जहन में अगर आ रहा हो किसी गुफ्तगू के ताल्लुक़ से पूछ सकते हैं, मर्द भी पूछ सकते हैं, बच्चे भी पूछ सकते हैं, बच्चियाँ भी पूछ सकते हैं। जैसे कुछ दे देगा।